So hello students, welcome to Learning Continues. Hope you are doing well. I am well and just maintain the precaution that our government has ordered. So today we shall start a new chapter from your evolution, that is chapter number 3, hobbies. Now first question is, what do you mean by hobby, or what is hobby? So basically hobby is a term, or hobby is an emotion which give us a stress-free life. Hobby is the things that we like or we love to do. Suppose someone have a hobby to playing cricket, so he likes the cricket, so his hobby become a cricketer, or his hobby is playing cricket. Someone loves to read the book, so he or she is fond of book and his or her hobby is reading book. Hobbies are helpful to express our interest, aptitudes and talents, which help us to spend our time productively. Hobbies are excellent modes of communication according to our surroundings. Hobbies help us to develop our skill, which could be helpful to us. They help us to have a dialogue with our mind and feelings. That is, if someone likes a things or likes to do a things, then it is his hobby. And hobby give us a stress-free life, a relaxation from our busy schedule. So in this chapter, we shall study about a person who is known as Birdman of India. Why people call him a Birdman of India? Because he loved the birds and protect the birds, trying to protect the birds, and that's why people called him as a Birdman of India. So here is a person named as Dr. Salim Muhyiddin Abdul Ali. He protect the birds, he loved the birds, and to see or to observe the birds is or was his hobby, and later the hobby became a profession to him, and he won many rewards or awards in this department. To protect the wildlife, to protect the birds, he received a plenty of rewards or awards. So in this chapter we shall study about him. Before starting the chapter, I have a request that if you are new in my channel, then subscribe my channel, and if you like my explanation, then press the like button, and if you have any doubt, any queries regarding the story, regarding this chapter, then you are feel free to ask me. And I have a book, so I will dictate the story along with Hindi so that you can easily understand the story. So let's start the story. Birdman of India. Dr. Salim Muhyiddin Abdul Ali is one of the most versatile men the world has ever known, as ornithologist, ecologist, teacher, writer and explorer, all rolled into one. He has been lovingly described as a bright-eyed, sparrow-like, all-knowing father. So डॉक्टर सलीम मुहिउद्दीन अब्दुल आली जो काफ़ी मशहूर थे अपने इस वर्ल्ड पे, जो एक इकोलॉजिस्ट थे, जो इकोलॉजी से संबंध या इकोलॉजी डिपार्टमेंट से रिलेटेड
थिंग्स को डील करते थे। टीचर थे, राइटर थे, एंड एक्सप्लोरर यानी कि लोगों को अवॉर्ड करते, लोगों को एडुकेट करते थे। और ऑर्निटोलॉजिस्ट, दैट इज द टर्म ऑर्निटोलॉजी means that a person who is dealing with ornithology. The term ornithology means that the science that deals with birds, or the subject or the department that deals with birds is known as ornithology. And from ornithology, the person who deals with this subject, this department, and this type of activity, that is the person who love bird, is known as ornithologist. So ये काफ़ी मशहूर थे, मतलब सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल आली काफ़ी मशहूर थे, अपने बर्ड्स को लव करते थे। और इकोलॉजिस्ट थे, मतलब इकोलॉजी को लेके डिस्कस करते थे। टीचर थे और एक राइटर थे, जो जिनके क्या थे, लवली डिस्क्राइब एज ए ब्राइट आइड, जिसको लोग कहते थे कि ब्राइट आइड, और स्पेरो लाइक, ऑल नोइंग फादर, सब कुछ जानते थे, वो सबका बाप समझ लो, ऐसा कुछ मानते थे लोग। Born on 12th November 1896 in Mumbai and orphan at an early age of 10, Salim Ali was brought up by his maternal uncle Amiruddin Tayyibji and his wife Hamida Begum. Hero worshipped his stylish uncle, who accompanied the royalty on hunting trips. He initiated the child to shikar hunting that lead to the awareness of the natural world. सलीमुद्दीन 12 नवंबर 1896 को मुंबई में जन्म हुआ था उनका, और 10 वर्ष के समय में वो मतलब अपने माता पिता को खो दिए थे। तभी उनके मामा और मामी, जिनका नाम अमीरुद्दीन तैयबजी एंड मामी का नाम हामिदा बेगम थे, उन्होंने सलीमुद्दीन को पाला पोसा। और ये जो मामा और मामी थे वो वंश से थे, तो उनका हंटिंग, राजा या राजवंश से रिलेटेड पर्सन क्या करते थे, काफ़ी शौक रखते थे कि हंटिंग करना। तो ये जाते थे मामा के साथ हंटिंग करने, और मामा ने इन्हें सिखाया था कि या अवेयरनेस या नेचुरल वर्ल्ड के बारे में अंदाजा दिया था। Even as a child, Salim showed an interest in bird watching and following their movements and habits. Salim Ali was encouraged to take up the study of birds seriously by W.S. Millard, the secretary of Bombay Natural History Society. What started as a hobby developed into a cause to which he dedicated a significant part of his life. तभी छोटे वक्त से वो बर्ड के प्रति काफ़ी मनोरंजक थे, या इंटरेस्ट था उनका बर्ड्स के प्रति। तो उन्होंने बर्ड्स को ऑब्जर्व किया, देखा, और उनके हैबिट्स, क्या चाल चलन है बर्ड्स के, सभी वो ऑब्जर्व करते थे। और बाद में सेक्रेटरी ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के जो सेक्रेटरी थे W.S. मिलार्ड, उन्होंने उनको एनकरेज किया ये बर्ड के बारे में जानने के लिए या उनका स्टडी करने के लिए। और इसके बाद उनका एक लाइफ जो शुरू हुआ वो एक काफ़ी मज़ेदार लाइफ या इंटरेस्टिंग या सिग्निफिकेंट लाइफ था। Known as Birdman of India, Salim Ali was among the first Indians to conduct systematic bird surveys in India. His book have contributed enormously to the development of professional and amateur ornithology in India. और इसके बाद वो सलीम अली क्या थे, बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। और उनके काफ़ी सारे बुक्स है जो
पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और ये जो प्रोफेशन है ऑर्निटोलॉजी, इस पे काफी डेवलप किया है इन्होंने। Salim Ali once said, "My chief interest in bird study has always been its ecology, its life history under natural condition and not in the library under a microscope." Ali's diligent study led to the rediscovery of a rare weaver bird species called Finns baya in the Quaman Terai region। यानी कि हम जब एक स्पीसीज डिस्कवर्ड होता है या किसी भी एक नए चीज प्रजाति डिस्कवर्ड होता है तो लोग इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोस्कोप या लेबोरेटरी में ले जाके उसको स्टडी करते थे। जैसे अभी कोरोना वायरस को लेके स्टडी किया गया है कि कोरोना वायरस के साइज वो देखने में कैसा है, तो हम पिक्चर जो वेबसाइट या सोशल मीडिया पे दिखाई देता है वो क्या है, माइक्रोस्कोप से लिया गया एक पिक्चर है एक कोरोना वायरस का। तो वैसे ही हर एक स्पेसीज का लेबोरेटरी में जाके टेस्ट किया जाता है, उनको प्रिजर्व किया जाता है, उनको देखा जाता है, उनको नोटिस किया जाता है, उनका चाल चलन, बिहेवियर, रिएक्ट कैसे करते हैं, इन सब को एक ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन ये मानते थे कि नेचुरल कंडीशन जो बर्ड है उसका जो नेचुरल कंडीशन है जहाँ पे है वहाँ पे जाके वो स्टडी करते थे। और जिसके लिए उन्होंने एक डिस्कवरी किया एक बर्ड जिसका नाम था एक स्पेसीज फिन्स बाया, और ये थेराई रीजन क्वामन थेराई रीजन में मिला था। सलीम अली committed himself to the cause of reviving the Bharatpur Bird Sanctuary and Silent Valley National Park. He was awarded the Padma Bhushan in 1958, Padma Vibhushan in 1976, and the J. Paul Jetty Wildlife Conservation Prize of the World Wildlife Fund in 1976 in the recognition of his great contribution to the maintenance of wildlife and in the field of ornithology। तो सलीम अली ने भारतपुर बर्ड सेंचुरी जो उसको रिवाइव किया, मतलब इसको जिंदा रखा, बचाया। साइलेंट वैली नेशनल पार्क उसको भी उन्होंने जिंदा रखा, यानी कि यहाँ पे रखा, उसका काफी ख्याल रखा। और इसके लिए उनको पद्मा भूषण 1958 को मिला था, पद्मा विभूषण 1976, जयपाल जेट्टी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्राइज 1976 को मिला था। और वाइल्ड लाइफ और ऑर्निटोलॉजी जो एरिया है वहां पे उन्होंने काफी डेवलप किया है। Salim Ali received many other awards and accolades for his achievement. His childhood hobby became a passion which motivated him to educate us about our rich wildlife, appreciate the beautiful birds that we see every day. और उन्होंने ये अवार्ड के अलावा और भी काफ़ी सारे रिवार्ड्स जीते थे। और इनका एक हॉबी था बर्ड को देखना या ऑब्जर्व करना, या बर्ड को लव करते थे, तो उनका एक हॉबी था बर्ड को देखना। और तभी इस हॉबी एक दिन क्या हुआ, उनका प्रोफेशन बन गया। और जो लोगों को एडुकेट करते थे बर्ड्स से रिलेटेड या इकोलॉजी से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और जिसके कारण आज हम ये बर्ड्स देख पा रहे। तो चैप्टर इज ओवर नाउ। योर टास्क इज टू रीड द चैप्टर प्रॉपरली so that you can understand more. And if you have any doubt, any queries, then you are feel free to ask me. So let's have a look to the questions answer of this chapter. When and where was Salim Ali born? Salim Ali was born on 12th November 1896 in Mumbai. What did Salim show interest in as a child? Salim किस चीज पे इंटरेस्ट था उनका? बर्ड्स के प्रति। So we can write the answer like Salim shows interest in birds. How was Salim Ali's uncle a major influence on him during his childhood? किस तरह से उनका मामा का इन्फ्लुएंस उनके लाइफ में काफी पड़ा है? तो उनके
जो और पेन होने के बाद 10 इयर्स ओल्ड पे जब उनके माता पिता मर गए थे तो उनके मामा और मामी ने उनको रखा था, और वो राजवंश से बिलोंग करते थे, और जिन्होंने उनको नेचुरल वाइल्ड के बारे में वो थोड़ी बहुत अंदाजा या उनको घुमाते ले जाते थे या हंटिंग करने ले जाते, तभी से उनका लाइफ में ये चेंजेस आया। Who encouraged सलीम अली to take up the study of birds seriously? किसने सलीम अली को कहा था कि सीरियसली बर्ड्स को ऑब्जर्व करो या स्टडी करो? तो आंसर इज a man, the secretary of बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, दैट इज W.S. मिलार्ड, जिन्होंने उनको एनकरेज किया था। डिस्क्राइब द वर्क दैट सलीम अली डिड। सलीम अली के वर्क को डिस्क्राइब करना है। तो सलीम अली ने क्या किया? इंडियन ऑर्निटोलॉजी या ऑर्निटोलॉजी पे काफ़ी डेवलप किया। उन्होंने भारतपुर सेंचुरी को बचाया, उसके बाद जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क को बचाया यानी कि रिवाइव किया, और इनके काफ़ी सारे बुक्स थे जो आज भी फेमस है और पूरे वर्ल्ड में वो फेमस है। तो ये हम बता सकते हैं। देन स्टेट सलीम अलीज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया और सेम। नंबर 5 आंसर, व्हाई इज ब्रेडमैन ऑफ इंडिया एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर सलीम अली? क्यों ब्रेडमैन ऑफ इंडिया सलीम अली के लिए एक टाइटल है? तो ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने ऑर्निटोलॉजी या बर्ड्स के प्रति अपना लव, अपना अफेक्शन, अपना सब कुछ दे दिया था और लव करते थे बर्ड्स को, और इसके कारण उन्होंने काफ़ी सेंचुरी या वाइल्ड लाइफ या नेशनल पार्क को बचाया, और इसके साथ साथ उन्होंने काफ़ी सारे बुक्स लिखे जो आज भी हम अगर पढ़ते तो हमें ये बर्ड्स के बारे में और भी जानकारी मिलते थे, और आज भी हम बर्ड्स को देखते हैं और इनके लिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो अवर, have you remembered the cinema of Robot 2 where Akshay Kumar played a vital role for protecting birds? अक्षय कुमार ने बर्ड्स को बचाने के लिए वो रोबोट 2 में दिखाया कि क्यों वो बर्ड को बचाते थे या किस तरह बचाते थे, तो इसलिए बर्डमैन भी इसको कहते थे। तो ये बर्ड आजकल नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि रेडिएशन के कारण, टावर नेटवर्क टावर के कारण, जो हमारे आसपास जो टावर्स है, मोबाइल टावर्स, इसके कारण यहाँ पे रेडिएशन होता है, और रेडिएशन के कारण बर्ड्स को काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, वो जिंदा नहीं रहते। सो स्टे कनेक्टेड विथ मी फॉर न्यू अपडेट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।